मुंबई में आयोजित 17वीं फिक्की अन्नपूर्णा इंटरफूड प्रदर्शनी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने फूड प्रोसेसिंग को किसानों और उपभोक्ताओं की समृद्धि के लिए अहम बताया। पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई जैसी सरकारी योजनाओं का उल्लेख किया, जो सूक्ष्म उद्यमों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। इस आयोजन में भारत सहित अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे 17-18 देशों के प्रतिनिधियों और खरीदारों ने भाग लिया। इवेंट में जारी एफएमआई रिपोर्ट के अनुसार जेन जेड के प्रभाव से भारत का किचन अप्लायंस मार्केट 2035 तक $50 बिलियन के पार जाने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि आधुनिक उपभोक्ता जेन जेड उत्पादों में पारदर्शिता और एथिकल सोर्सिंग को प्राथमिकता देते हैं। A huge shift in the demand in the Indian market specifically and the respective Asian countries, and we were actually looking forward to get a better collaboration in understanding how the Indian market is, how the production supply demand assessment is, and I think Annapurna is something which is giving us as a research company a very good platform to understand the Indian ecosystem and how we can cater to supply and demand through our research services as well. So in collaboration with Annapurna, Future Market Insights did launch a white paper which represents how the industry is shifting from the demand perspective. We have a lot of dignitaries who would give a great insight about the logistics and the backward integration of how production, import, export, supply chain is happening. We from the other end try to understand how the opportunity is created and more importantly how we can cater to it. So the white paper regards to how the Gen Zs versus the millennials are catering to the demand and generating the new demand in the next 5 to 10 years and how the trend is going to shift. So the white paper is designated to this. I'm sure it will be available for all of you guys for free download. Do read the information, understanding how the brands or the companies need to get transparent with respect to the supply chain, understand what ingredients are acceptable by the customer base, whether it is an Indian customer or an export market, which ingredients to look forward to, at what pricing you can procure it, and how the overall cost structure can be suitable, meeting the end customer's demand as well. So this is all about how we understand it. If you feel after reading the white paper, if you feel that you have any queries, you can always reach out to me, anybody from our company. And yes, I think over the period of today's event, it would be great to interact with all of you who are sitting here and the dignitaries as well. And thank you so much for the platform. Thank you, everyone. Ma'am Preeti Chaudhary, IRS Director, FSSAI. Everybody, welcome, respected Ma'am Preeti Chaudhary. A very good morning, dignitaries on the dais, respected Avinash Joshi sir, Rajesh Rathod ji, Balvinder ji, Ashwani ji, Nandini, and dignitaries of the dais. It's definitely an important day, I would say, because a lot of minds are mitigating together to cater to the emerging India, the new India that we all are envisaging, and trying to figure out our roles that we can play for this new India. So as a body, FSSAI is a apex regulator for the food safety, but the basic preamble of FSSAI itself talk about wholesome food and the nutrition. Health, nutrition and wholesomeness of the food is one of the important aspects for us.
So over the period, the role of safe food and standard food moved one step further for ensuring the healthy and nutritious food. And with that mandate, we started working on a lot of initiative. Eat Right India initiative, basically connecting ourselves to the schools, campus. Industrial Development Corporation for the special address. Everybody, I request you all to give a warm round of applause and welcome Shri Rajesh Rathod ji. Thank you so much. Very good morning. Warm welcome to all dignitaries who present here. Respected Joshi sir, the Secretary of MOFPI, esteemed dais, all delegates, industry leaders and investors. I am here to present my state, that is Madhya Pradesh, is the heartland of India. As you must aware, it's a very progressive, peaceful and agri-based state in the nation, and our agriculture growth rate is very good as per national perspective. We are getting Krishi Karman award from last 8 years. It show our capacities in agriculture sector Himself. On that note, let us all together with a big round of applause welcome our chief guest, respected Shri Avinash Joshi ji, IAS Secretary, Ministry of Food Processing Industries. Everybody, I want you all to give a warm round of applause as we welcome our chief guest on stage. So thank you very much and good morning to all of you. I am really happy to be here amongst all of you. My colleagues on dais, first of all Mr. Sahani from FICCI for inviting me here and giving me opportunity to interact with you. Ms. Nandini, Ms. Preeti, Rajesh, Mr. Ashwini. First of all, it's a privilege to be here in this I think 17th edition of Annapurna. Mr. Sahani has already informed us about the background and history of Annapurna. This must be one of the platforms which has grown with the passage of time and which is a platform to showcase innovation in food, our processing capabilities and technology and global partnership. So I congratulate FICCI to have this particular event here in Mumbai. Earlier speakers have talked about FSSAI. So as rightly said, these are the new areas like nutraceuticals, Ayurahara or plant-based protein. So still we are at a very early stage of evolution. So if we want to take advantage of this, it's better that we move in fast. And it's a huge market. We have not even touched the tip of the iceberg. So all the industry partners here, I agree that these are the new area where we can venture into. When I joined this ministry, there were a lot of issues we were talking about, conflict between regulator and the promoter. So FSSAI, and I'm very happy to inform that now we have a very formal mechanism to iron out all those differences. And in fact, we had a very fruitful and productive meeting at the cabinet secretary level, where a lot of reform, particularly keeping the industry in mind, I think those are in the pipeline, and very soon I think there will be a lot of positive interventions regarding ease of doing business. And the purpose, whether it is a regulator or a promoting industry, is the same: the development of the industry. We cannot compromise in the food safety or public safety, but at the same time, we must have trust in our own industry. Friends, Madhya Pradesh, Mr. Rajesh was telling about the importance and
the policy intervention by Madhya Pradesh. See, the beauty of India is we are countries within a country. There are different states, we are at different level of development. When we talk about the food processing also, all like you can divide the states in 3 or 4 categories. Some are in very advanced stage of food processing, some are positive things. There are lot of policies like support, lot of fiscal incentives, whether it is by MOPI or by the state governments. So, and this is the opportunity for the industry. Because today also in India, like though we are either the first largest or the second largest, you take out any agri product, India will not go beyond third or fourth. But when we talk about the processing level, the current estimate tells us that we process around 11 to 12% of our total food, which is very, very low. Forget about USA and Europe. Even compared to Vietnam, Philippines and Thailand, we are at 1/3 or 1/4 of their processing level. Just imagine if in next 7 or 8 years, we go to say 25 or 30% of processing level. So whatever is the size of industry today, we can create the same size in the next 7 years or next 5 years. And this is the opportunity. With the change in the food habits, with the higher disposable income, with urbanization, with both the husband and wife working, the Ashwani Pandey, CEO VA Exhibition, for the word of thanks. Everybody welcome Shri Ashwani Pandey. Everybody, dignitaries on the dais, off the dais, our exhibitors, visitors who has come from different part of the world, and we also have the hosted by itself just for information to improve the European market to the Middle East. And a lot of people have said about the industry, about the Annapurna, so I do not need to repeat it. But I'd like to thank to all the sponsors who have supported our initiative to make the show for the industry and create the platform for the Indian food processors to grow their market, not only in India, but also outside the world. So with these words, I'd like to thank once again to all my exhibitors, all my visitors, all the buyers. Respected Nandi, मैं नंदिनी वर्षाती हूँ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर मार्केट इनसाइट। तो हमने अन्नपूर्णा के साथ कोलैब करके एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है हाउ द ट्रेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम द जेन ज़ीज़ वर्सेस द मिलेनियल्स।
तो अगर हम देखें तो फ्रॉम द एज परस्पेक्टिव जनरेशन बाय जनरेशन ट्रेंड चेंज होता है, कस्टमर का परसेप्शन चेंज होता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. So how now the Gen Zs are looking into the market. जैसे आप देखते हैं कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग जो Gen Zs होता है उनको बहुत अट्रैक्टिव चाहिए होता है, नियॉन कलर्स चाहिए होते हैं, या फिर Gen Zs को चाहिए होता है कि प्रोडक्ट का इंटेंट सही होना चाहिए. Previous generations they used to focus more on ingredient organic होना चाहिए, plant based होना चाहिए, but अभी धीरे धीरे करके the trend is shifting more towards कि ब्रांड का इंटेंट सही होना चाहिए, इट शुड बी इको फ्रेंडली, और कहीं ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए. एक सिंपल प्रोडक्ट जैसे कि अगर एक जैम हो या पीनट बटर भी हो, विच इज अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट, स्टेपल प्रोडक्ट फॉर एनी मार्केट, बट नाउअडेज कस्टमर्स को उसमें भी प्रोटीन वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यूज चाहिए. तो दीज आर द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरर्स को ये फोकस करना बहुत जरूरी है. तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके पीछे का आपको इंटेंट, ट्रांसपेरेंसी, आप रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, ये सब कुछ एक कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट सोर्सिंग से लेके द फाइनल इंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, all of these things are something which a brand needs to focus right now. क्योंकि आज की डेट में customers have become very knowledgeable, उन्हें समझता है कि what to purchase and what not. तो सिर्फ जाजी प्रोडक्ट बनाने से या बहुत अच्छा पैकेजिंग कर लेने से रिटेल शेल्फ पे प्रोडक्ट नहीं बिकता है. You have to work a lot behind the product. और नई जनरेशन ऐसी भी है कि वो कोलैब करके प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा पसंद करती है. अगर आप एक बेवरेज बना रहे हैं तो उसका पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, क्या फ्लेवर होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए. आप आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके या ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके सीधा कस्टमर से ही पूछते हैं कि हाउ दे वांट देयर प्रोडक्ट टू लुक लाइक. तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट से आज की डेट में एक ब्रांड बनता है. So there are a lot of changes happening into the industry which the brands and manufacturers need to identify. मैम आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर जो पैकेजिंग होती है उसमें भी लोगों को डाउट होता है कि कितने दिन की पैकेजिंग है. तो देखिए इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेगुलेटरी पॉलिसीज समझना और उसको इम्प्लॉय करना. जैसे हम बहुत सारे FDA के प्रोडक्ट या EU कमीशन के प्रोडक्ट अप्रूव चीजें यूज करते हैं इंडिया में, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फुल्ली रेगुलेटेड नहीं होते हैं. बहुत सारे ब्रांड सिर्फ क्लेम कर देते हैं कि हम क्लीन लेबल है या हम ऑर्गेनिक है, बट जरूरी नहीं है कि अगर समझिए कोई चिप्स का ब्रांड है उसने अगर ऑर्गेनिक बोला है तो वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हुआ होगा या ऑर्गेनिकली प्रोसेस हुआ होगा. तो बहुत सारी छोटी निटिग्रिटीज होती है थ्रू आउट द सप्लाई चेन, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग तक. तो ये टर्म्स को बहुत ओपनली, लूजली यूज करते हैं ब्रांड, विच नीड्स टू बी रेगुलेटेड. थैंक यू. आज यहाँ पे बॉम्बे के ये गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में फिक्की के द्वारा आयोजित अन्नपूर्णा फेस्ट का अभी आज के दिन हम लोगों ने उद्घाटन किया. यहाँ पे कुल मिला के काफी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग वाले काफी लोग आए हैं जो यहाँ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसके अलावा बहुत 17-18 कंट्रीज से बायर्स भी आए हैं जो यहाँ पे अपना मार्केट एक्सप्लोर करेंगे. ये जो अन्नपूर्णा का ये जो एग्जीबिशन है ये इसका 17वां एडिशन है और काफी लार्ज स्केल पे ये काफी सालों से होता आया है. फूड प्रोसेसिंग का जो हमारा सेक्टर है उसमें इस तरह के जो एग्जीबिशन होते हैं उससे भारत की जो प्रोसेस चीजें हैं, फूड प्रोसेस जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक डिस्प्ले करने का, उसको एक विजिबिलिटी दिलाने का एक मौका मिलता है. इसके अलावा कुछ राज्य के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती है. और सबसे बड़ी बात है कि ये एक मंच प्रदान करता है जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है उनको प्रोडक्ट्स देखने का, उनकी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होने का, एक दूसरे की प्रोडक्ट्स देख के सीखने का. तो हमारा जो मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण, वो भी फूड प्रोसेसिंग को अलग अलग तरह से पॉलिसी सपोर्ट हो, चाहे स्कीम के जरिए हम लोग जो इंसेंटिव देते हैं उसकी भी हम यहाँ जानकारी लोगों को आते हैं विजिटर्स उनको देते हैं.
और अभी जो हम जो नई स्कीम जो भी अभी हमारी चल रही है उसके बारे में भी हम इन्वेस्टर्स को बताते हैं। तो ये एक मंच है जो हमारा एक भारत में इतना सारा मतलब अगर आप किसी भी देखेंगे फूड्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, तो या तो हम पहले नंबर पे हैं या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे बहुत प्रोड्यूस करते हैं। हमारा पॉपुलेशन भी है तो डोमेस्टिक डिमांड भी है, पर अब जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उसके चलते अगर हम लोग प्रोसेसिंग का लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो उससे प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, क्योंकि प्रोसेसिंग जब आप बढ़ाते हैं तो फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, वैल्यू एडिशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और फूड प्रोसेसिंग भी एक जो है वो एक काफी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली जो हम छोटे सेक्टर की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो PMFME के बेनिफिशियरीज हैं वो जो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, भले उनको हमने 2 लाख 5 लाख रुपए का सपोर्ट किया है, पर उसमें भी 5 या 10 लोग काम कर रहे हैं, प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें भी लोग काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंक्लूसिव सेक्टर है और मुझे लगता है कि भारत में अभी इसको फूड प्रोसेसिंग को लेके काफी पोटेंशियल है। जैसे कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स में अभी पिकअप हो रहा है, और जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है या मिडिल क्लास बढ़ रहा है या जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो जो फूड हैबिट्स जो चेंज हो रही है उसके चलते इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं प्रोसेस फूड के जो हम यहाँ प्रोसेस करते हैं और बाहर भेजते हैं, तो उससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हमको मिलता है और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। किस तरह की ग्रोथ देख रहे हो, किस तरह स्कीम चल रही है उसके बारे में भी बताइए। जी, इसमें जो भारत सरकार की है वो 3 स्कीम है, जो मेन 3 स्कीम है जिसमें हम इंसेंटिव या सपोर्ट करते हैं। पॉलिसी सपोर्ट और नीतिगत जो सपोर्ट है वो अलग बात है, पर जो हम स्कीम के जरिए करते हैं, एक जो स्कीम अभी चल रही है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना एक्सपांशन करे, ग्रोथ बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट करे, तो उसके बेसिस पे हम उसको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो या और उसके अलावा जो हमारी 2 और स्कीम है जो मध्यम और निचले स्तर के या छोटे जो उद्योग हैं, गृह उद्योग है या माइक्रो एंटरप्राइज है, उनको सपोर्ट करती है। एक प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना है और एक PMFME है। तो PMKSY जो है उसमें हम प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाने का जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर्स जो बनते हैं उसमें हम सपोर्ट करते हैं। कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इरिगेशन सेंटर है, ये सब एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो पैसा लगाता है इन्वेस्टर, उसको हम 35% से लेकर 50% तक का फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और जो PMFME स्कीम है जो हमारी मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो सारे स्टेट्स में राज्य सरकार के द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो उसमें हम जो छोटे उद्योग हैं हमारे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसको हम लोग 10 लाख रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी देते हैं। और अभी आप यहाँ भी अन्नपूर्णा में देखेंगे बहुत सारे स्टॉल जो है वो PMFME बेनिफिशियरी लगाए हैं, और उनके प्रोडक्ट्स और लॉट ऑफ इनोवेशन के चलते काफी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ है और काफी नए नए प्रोडक्ट भी बाजार में आए हैं। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा कि PMFME के थ्रू जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाओं के और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको भी हम सीड्स कैपिटल देते हैं। तो जैसे एक ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, अगर 2 फूड प्रोसेसिंग का काम करना चाहती है तो वो उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये काफी राष्ट्रव्यापी स्कीम है और इसके काफी अच्छे बेनिफिट हमको देखने को मिले हैं। सर ये हार्वेस्टिंग बहुत है कर रही है, तो इसका पूरा इकोसिस्टम है। और उसमें जो एक बड़ा इश्यू आता है वो ट्रेसेबिलिटी का आता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से आया। और जैसे आप कहीं भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो मिनिमम रेसिड्यू लेवल है या जो पेस्टिसाइड का लेवल है वो PPM में या जिस भी लेवल पे है, वो जब तक नहीं होता तब तक आप वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब इसलिए है क्योंकि मुश्किल होता है, कुछ चीजें तो बहुत मुश्किल हो रही है। नहीं, इसमें ऐसा है कि अपेडा है या जो हमारा FSSAI है, ये जो सारे जो हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देखते हैं वो भी ऐसा नहीं है, वो किसानों का हैंड होल्डिंग से लेके किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको हमको लगता है कि हमने ऑर्गेनिक या इस साल खाद हमने मतलब केमिकल यूज नहीं किया तो ऐसा नहीं है। वो आपको लैंड 2 साल छोड़नी पड़ेगी ताकि उसमें जो केमिकल्स है वो वहां से हट जाए। तो ये जो सारा हैंड होल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, ये भारत सरकार में अपेडा के थ्रू भी हो रहा है,
FSSAI भी करता है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है उसमें से मतलब जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक होता है। तो ये एक जो सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है, एक तो क्वालिटी, केमिकल्स नहीं होता और उसका जो एक प्राइस है वो प्रीमियम मिलता है। तो इसमें लोग शॉर्टकट के जल्दी जब आते हैं तब बहुत बार होता है कि जब वो टेस्ट फेल होता है तब पता चलता है कि इसमें केमिकल रेसिड्यू है या मिनिमम रेसिड्यू लेवल उससे ज्यादा है। तो इसमें हम लोग एक पूरा इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और काफी अच्छा इसमें काम हो रहा है। पर इसमें जो लोग आना चाहते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि हम प्रोसेसिंग या जो भी हम कर रहे हैं प्रोडक्शन उसको हम रिस्पॉन्सिबली करें और लेबलिंग में वो सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। और अभी इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो काफी बड़ी है और बहुत सारे मतलब रेगुलेटेड प्लस हैंड होल्डिंग, सिर्फ रेगुलेशन करने से भी नहीं होगा, आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, किसानों को बताना पड़ेगा। जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको जो प्रिकॉशन लेने हैं वो लेने पड़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए कौन से वो प्रोडक्ट है जो इंडिया में बहुत होते हैं और हमने उनको एक्सपोर्ट किया है तेजी से? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए सिंगल कैटेगरी कहना बड़ा मतलब मुश्किल होगा, पर जैसे रेडी टू ईट, रेडी टू कुक ये कैटेगरी जिसको हमने PLI में सपोर्ट किया था, फूड्स एंड बेवरेजेस वाली एक कैटेगरी है जिसको हमने सपोर्ट किया था, और जो 2 सेक्टर है जिसमें बहुत तेजी से हमको लास्ट 5 सालों में ग्रोथ मिली है, एक है मोज़रेला चीज जो बफेलो मिल्क का चीज बनता है, उसका प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा है, और एक जो है वो है हमारा मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट। आज आप देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो पहले एक था कि भाई मैदे की कुकीज बन सकती है या लड्डू गेहूं का ही बन सकता है, वो अभी कंसेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मिलेट अगेन एक सस्टेनेबल क्रॉप है क्योंकि वो पानी कम लेती है और वो हेल्दी होती है। तो मिलेट वाला भी हमारा जो हमने सपोर्ट किया था PLI में और बाकी स्कीम में जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके चलते मिलेट का प्रोडक्शन, मिलेट बेस्ड फूड काफी बढ़ा है और उसका जो प्रोक्योरमेंट ये जो इंडस्ट्रीज कर रही है वो भी काफी लार्ज स्केल है। थैंक यू।